Hi everyone, in this video we will talk about post-quantum cryptography. You must have heard the word quantum, you must have heard the word cryptography, and obviously post was used for after. There, let's understand what is cryptography, what would happen if quantum computers will arrive, and what is finally post-quantum cryptography, what are the profits, what are the challenges that we are going to face. It will be a very short video just to make you understand that this thing you should be aware of this, okay? And I have been in internship regarding these topics for 4 to 5 months, so I think I have some experience to share it with you all. You might have watched my video, 5 high-paying jobs. In the last point I also mentioned regarding this domain, so do watch out if you have not checked. Now let's begin. So first of all, let's understand what is cryptography. So in layman words, if I would say, cryptography is a method to secure your data and communication. ठीक है, मान लो तुम्हें एक मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड को, तो what will you do is that you will have some key or you can say password in simple words, and तुम अपने मैसेज को encrypt करोगे, उसको भेजोगे, जो रिसीवर होगा वो एक उस की को यूज़ करके वो मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा. ये सिंपल सा फंडा होता है क्रिप्टोग्राफी का. इससे क्या होता है, जो तुम्हारा कम्युनिकेशन चैनल है उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होता है. अब क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से ये कैसे चेंज होगा भैया? सो क्रिप्टोग्राफी की जो मैकेनिज्म्स हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, वो होती हैं RSA, ECC, DSA. ठीक है, ECC इज एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. And they are based on some mathematical hard problems like the factorization of very large numbers. So unless until तुम ये चीज़ decrypt नहीं कर पाते हो, you won't be able to decrypt the message. तो क्लासिकल साइबर अटैक्स जो होते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स की तरफ से होते हैं, they are not able to solve these problems. But in 1994, a mathematician named Peter Shor, he developed an algorithm using quantum mechanics, because quantum computers में obviously quantum mechanics use होगी. When he developed that algorithm and showed कि उस algorithm से बहुत easily तुम्हारे large numbers का factorization हो जाएगा. So quantum computers जब आएंगे जिनमें quantum mechanics use हो रही होगी, they will be easily able to decrypt the information. अब this was the point where everyone was concerned about their assets, most importantly the government and the military, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स होते हैं एक कंट्री के जो कि सबको प्रोटेक्ट करके रखने होते हैं. हमारा क्रिप्टोग्राफी काम कहाँ करता है? बैंकिंग सिस्टम्स में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, एंड टू एंड एनक्रिप्शन में, गवर्नमेंट एंड मिलिट्रीज के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया. तो इस मोमेंट पे एवरीवन डिसाइडेड दैट वी नीड अ क्वांटम सेफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म to protect our assets. So basically, post-quantum cryptography is just a method to develop cryptographic algorithms, cryptographic systems to protect your information from the attack of a quantum computer. That's it. In very simple terms, this is what is post-quantum cryptography. अब ये हाई डिमांड में क्यों है? बिकॉज you must have heard articles. मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि everywhere there is this news कि by 2030 you might expect क्वांटम कंप्यूटर्स. ठीक है, फिर 2030 तक अगर तुम क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सपेक्ट करते हो तो कुछ टाइम के बाद तुम क्वांटम कंप्यूटर्स से अटैक्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो एंड डेवलपिंग दीज एल्गोरिथम्स इज नॉट वेरी इजी. इन 2022 NIST जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेफ सिक्योरिटी के पीछे सबसे ज़्यादा फोकस रखती है, उसने 3 एल्गोरिथम्स को क्वांटम सेफ बताया था. क्रिस्टल्स दिलिथियम, क्रिस्टल्स काइबर एंड फैल्कन, और एक आध दो और होंगी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये 3 एल्गोरिथम्स को उसने सेफ बताया था. तो इन एल्गोरिथम्स को डेवलप करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो इस वजह से जो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च करते हैं उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं. तो इस फील्ड में तुम जा सकते हो. अब प्रॉफिट्स क्या होंगे क्वांटम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के? हमारे साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड होगी, हमारे गवर्नमेंट एंड मिलिट्रीज एसेट्स सेफ होंगे, कंपनीज के एसेट्स सेफ होंगे, विल गेट द पर्सन्स वर्किंग इन दिस फील्ड विल गेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. बट क्या इसके चैलेंजेस होंगे? तो हाँ, डेफिनेटली यार, चैलेंज हर चीज़
अगर कुछ प्रॉफिट के साथ आती है तो कुछ चैलेंजेस के साथ भी आती है। तो चैलेंजेस का सबसे बड़ा तो ये होगा कि आरएसए और डीएसए जैसी जो एल्गोरिथम्स या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते थे वो काफ़ी ईजिली फिट इन होते थे, बट हमारा पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इतना ईजिली फिट इन नहीं होगा हमारे कंप्यूटर में। इसकी एल्गोरिथम्स के की साइजेस एंड सिग्नेचर्स, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई एक एरे है, बहुत बहुत ही लेमैन वर्ड्स में एक एरे है, उसका लेंथ इतना ज़्यादा है कि वो तुम्हारे कंप्यूटर में इतनी जल्दी फिट इन नहीं होने वाला है। आई नो दिस डजंट साउंड राइट, बट अभी की साइजेस और सिग्नेचर्स को एक्सप्लेन करने का यही तरीका है। So this was all about post-quantum cryptography. I explained why it would really grow up in the coming future, and you should really, if you are in your first or second year, you should really explore this field and you might even make a career in this. That's it. Thank you.